everyone, welcome or welcome back to my channel. I'm Anushka Kale, and if you are new to my channel, don't forget to like, share and subscribe. So today, as you know from the title of this video, we are gonna shoot a video for collaboration, about collaboration. So let's get started. So the first question that people ask me, that what are collaborations? So collaboration is basically a situation where a company or a brand sends you their products and you have to just advertise it, or you just have to like promote it on your page. You can just promote the product, you can promote it without showing your face, you can promote it with showing your face. Totally depends on the deliverables which brand wants from you. So basically, if a brand wants a face video or a faceless video, so you can go with the service, like whatever you can provide them. So this is what the collaboration means, that they send you products and you have to just do the advertisement or do the PR of that product. Now again, in collaborations also there are three types of collaborations. First one is the reimbursement, second one is barter, and the third one is paid collaborations. So for the reimbursement collaboration, the kind of collaboration where brand sends you their products, but first you have to buy the product. After the product you receive, you have to create a short video, reel, or whatever they want from you. So you just have to create that deliverable for them, and after you complete that deliverable, they refund you the money of the product in within like 7 to 10 days. So it's a reimbursement collaboration. Initial kind of collaboration is barter collaboration. In barter collaboration, you don't have to pay for anything. You don't have to wait for the refund for 7 to 10 days. In this, the brand directly sends you the products on your given address, and you just have to submit the deliverables like a reel, a story, or whatever they want from you. So third one is the paid collaboration. Paid collaboration is the kind of collaboration where you have to you will get the products from brand, and you will also get some money from them as well. सो इन दिस काइंड ऑफ कोलेब्रेशन आपको सिर्फ प्रोडक्ट भी आ जाता है, आपको पैसे भी आ जाते हैं, आपको सिर्फ उनको जो भी उनका कंटेंट उनको चाहिए, लाइक द स्टोरी, द रील और वॉट एवर दे वॉन्ट, तो आप उनको दे सकते हो. सो फॉर रीइम्बर्समेंट आई डिड लापिंग. बार्टर कोलेब्रेशन मुझे पूर्णा गमीज और पिलग्रिम की तरफ से आया था, जहाँ से उनके प्रोडक्ट्स मुझे ऑटोमेटिकली मेरे एड्रेस पर आ गए थे. आई डिडंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट. And for lapping, I had to pay some amount to them, and they reimbursed me after, or refunded me after 7 days of the deliverable. How to start UGC, or how to start this content creation or collaboration. So see, when I started a month back, or opened my Instagram account as well. So एक महीने पहले जब मैंने स्टार्ट करा था, तो आई वॉज ऑल्सो बिगिनर. आई डिड नॉट इवन नो दैट हाउ टू स्टार्ट UGC और हाउ टू वॉट इज़ UGC. सो UGC इज़ बेसिकली यूज़र जनरेटेड कॉन्टेंट. सो इसका मुझे भी कोई नॉलेज नहीं था. पहले मुझे भी यही लगता था कि इसके लिए किसी वेबसाइट पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता होगा, वहाँ पर आपको अपने पोस्ट डालने पड़ते होंगे, वहाँ पर आपको अपनी चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ती होगी. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगर आपके पास में एक इंस्टा अकाउंट है, सो और आपके पास में कुछ भी प्रोडक्ट्स है, लाइक यू हैव अ फेस वॉश, यू हैव अ क्रीम, यू हैव अ समथिंग लाइक फ्रॉम मेकअप, ब्यूटी और वट एवर योर निशेज. सो आपके पास में अगर कोई भी अवेलेबल प्रोडक्ट है, आप बस उसका एक छोटा सा वीडियो बना लो. इट कैन बी फेसलेस, इट कैन बी विथ शोइंग योर फेस. सो आपको जैसा भी लग रहा है, आप उसका एक वीडियो बना लो, और यू जस्ट हैव टू पोस्ट इट ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट. जहाँ पर आपका अकाउंट है, यू जस्ट हैव टू पोस्ट इट देयर. आप वहाँ पर उसको पोस्ट करना स्टार्ट करो. साथ में आप उस जिस भी ब्रांड का आप वो पोस्ट बना रहे हो, उस ब्रांड को टैग करना स्टार्ट करो, उसके बारे में कुछ लिखना स्टार्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करो. सो आपकी कम्युनिटी ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगी. सो दिस इज़ वॉट अ UGC कॉन्टेंट इज़. इसमें आपको कोई अलग से किसी वेबसाइट पर जा करके कुछ अलग से कॉन्टेंट या किसी अलग से अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं. आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उससे ही इसको स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, where can I find the PR contact forms or applications for collaborations? So मैंने जब इनिशियली स्टार्ट करा था, तो आई यूज टू पिच अ लॉट ऑफ ब्रांड्स. लाइक मैं हर ब्रांड के DM में जा करके पिच करती थी कि लाइक आई एम like my name, I have this niche, I have this followers, I have this much subscribers on YouTube, and I have all this stuff. I can provide you this kind of collaboration I want to do with you. So मेरा जो भी डिटेल रहता था, मैं सब कुछ उनको पिच करती थी. फिर कुछ 15 मतलब कुछ 1-2 हफ्ते के बाद में मुझे पता चला कि ये जो ब्रांड्स को हम पिच करते हैं, ये बहुत मतलब रेयरली आपको वहाँ से कुछ आंसर आता है.
मोस्टली जो ब्रांड्स रहते हैं, लाइक जो बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक डॉट एंड की, पिलग्रिम, पूर्णा, और जितने भी लाइक अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनको अगर आपको पिच करना है, सो यू हैव टू फिल देयर कोलैबोरेशन फॉर्म्स। सो कोलैबोरेशन फॉर्म्स अब कहाँ से भरे? अब क्वेश्चन नेक्स्ट यही आता है कि इसके लिए हमें मिलेगा कहाँ से। सो बेसिकली मैंने इंस्टा पे जब मेरी कम्युनिटी थोड़ी सी ग्रो हो गई थी, तो मुझे एक दो ऐसे चैनल्स मिले, व्हाट्सएप चैनल्स, जहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पर वो लोग डेली कुछ फॉर्म्स वगैरह सेंड करते हैं। तो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप्स इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन ज्वाइन दैम। सो मैंने उनको ही ज्वाइन करा। सो मुझे पिलग्रिम का और पूर्णा गमीज का जो पीआर था वो उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स की वजह से आया, बिकॉज मैंने उधर वो फॉर्म्स फिल करना स्टार्ट करे थे, इस वजह से। नेक्स्ट थिंग इज, what are the requirement qualification for the UGC creator to work with the content and something? So see, the requirements are very basic. When I started with just my phone. I had my phone only. मैं अपनी बालकनी, मतलब जो विंडो थी उसके सामने से जो सनलाइट आती थी, विंडो में अपना मतलब फ़ोन लगा करके बैठ करके शूट करती थी और सब कुछ करती थी। सो मेरे पास में स्टार्टिंग में कोई लाइटिंग्स नहीं था, कुछ मतलब बैकग्राउंड नहीं था, पीछे से मैं एक कर्टन लगा करके अपना काम करती थी। सो बेसिकली मैंने जब स्टार्ट करा तब मैंने बहुत कम चीज़ों से स्टार्ट करा था। बट आफ्टर लाइक माई फर्स्ट कोलैबोरेशन और सम सेकेंड कोलैबोरेशन आई स्टार्टेड, मतलब मैंने जब थोड़ा सोचा कि नहीं, अब मुझे अपना जो कॉन्टेंट है वो थोड़ा बेटर डिलीवर करना है। सो फिर मैंने एक ट्राईपॉड जो है, मतलब बेसिकली एक ट्राईपॉड विथ अ रिंग लाइट, जो कि उसमें ही रिंग लाइट अटैच्ड है, तो आप एक वो ले सकते हो। बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अ फेसलेस क्रिएटर तो आपको मैक्रो लेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज आपको जो प्रोडक्ट है उसको ही अगर सिर्फ शूट करना है, अगर आप अपना फेस शूट नहीं कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ आपका प्रोडक्ट शूट करना है, तो फॉर द प्रोडक्ट शूट आपको मैक्रो लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंडली एक रिंग लाइट, एक ट्राईपॉड, एक मैक्रो लेंस, एंड कुछ भी बैकग्राउंड में अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो आप एक क्लोथ ले लो, या फिर कुछ भी एक वॉलपेपर ले लो, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। सो उससे बेसिकली आपका क्या हो जाएगा कि एक सेटअप रेडी हो जाएगा। और कुछ प्रॉप्स ले लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप एक वास ले सकते हो, टेक सम इयर रिंग्स, कैंडल्स, जो भी आपके पास में है, टू यू नो लाइक जस्ट पुट अ प्रॉप अराउंड योर प्रोडक्ट, ताकि वो लगे कि हाँ आपने कुछ अच्छा करा है उस पर मेहनत। सो ये जो एक दो प्रॉप्स है वो भी आप खरीद सकते हो। सो इट्स नॉट लाइक विद इन 1000 रुपीज़, अंडर 1000 रुपीज़ आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरा बना सकते हो। सो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अंडर 1000 आपका आराम से सारे जो रिक्वायरमेंट्स वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो मैं ट्राईपॉड यूज़ करी, जो मैं रिंग लाइट यूज़ करी, उसका मैं आपको लिंक वगैरह सब सेंड कर दूंगी, मतलब जो भी लिंक वगैरह है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो आपके लिए ईजी रहे उसको खरीदना वगैरह। नाउ द नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। सो फॉर क्वालिफिकेशन यू डोंट नीड एनीथिंग लाइक कि आपको कोई डिग्री चाहिए कि सी यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट और यू नीड टू बी अ पोस्ट ग्रेजुएट। बट या फॉर क्वालिफिकेशन यू नीड सम स्किल्स। द स्किल्स इज कि आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है कैमरे के सामने, बिकॉज अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आस्क यू टू क्रिएट अ फेस कॉन्टेंट, लाइक अ फेस शोइंग कॉन्टेंट। सो अगर आप फेसलेस कॉन्टेंट में ही कंफर्टेबल हो, सो यू शुड हैव अ बेटर लाइक अ प्रो, लाइक अ टॉप नॉच एडिटिंग स्किल्स। आपकी जो एडिटिंग स्किल्स है, आपकी शूटिंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज या तो ब्रांड्स को एस्थेटिक वीडियोस चाहिए, या तो फिर ब्रांड को आपका फेस शोइंग वीडियो चाहिए। अगर आप दोनों में से कोई एक प्रोवाइड कर सकते हो तो आपको उस मतलब उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहिए बेसिकली। अगर आप फेस शोइंग हो, सो यू जस्ट नीड अ लाइट, अ गुड लाइटिंग, अ गुड सेटअप, अ गुड बैकग्राउंड अराउंड यू, सो दैट आपका जो ब्रांड का कंटेंट है आप वो बना सकते हो। बट इफ़ यू आर अ फेसलेस कंटेंट क्रिएटर देन डेफिनेटली यू नीड अ वेरी वेरी हाई एडिटिंग स्किल and a very very good shooting skills as well. Next is, are there any specific content themes or products focus for it? So see, the content theme is like कि I started with the beauty niche because my niche is beauty and fashion. And why I started it with this, बिकॉज मेरे पास में जो चीज़ें अवेलेबल थी, बिकॉज सी आई एम अ गर्ल, सो मुझे अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना था घर से, मुझे अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना था यहाँ से। सो आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज कि हाँ आई कैन गो विद द टेक फील्ड और आई कैन गो विद द एजुकेशनल फील्ड और मोटिवेशनल फील्ड और समथिंग लाइक दिस। सो मेरा कंटेंट, मुझे पता था कि जो भी मैं कंटेंट करने वाली हूँ वो मेरे पास में अवेलेबल होना चाहिए एट द मोमेंट। मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे उसमें कुछ और मतलब कि बोल सकते हो, और मतलब मुझे उसमें और ज़्यादा घुसना नहीं था। तो मेरे पास में जो चीज़ें अवेलेबल थी बस मुझे उसके साथ में स्टार्ट करना था। सो आई स्टार्टेड विद द ब्यूटी निश, बिकॉज मेरे पास में जितने भी सी फेस वॉश हो गया,
उसके बाद में द क्रीम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये सब हर लड़की के पास में होता है. सो मैंने उसके साथ में स्टार्ट कर दिया बिकॉज यू नो वी आर गर्ल्स, तो हम इसके साथ में स्टार्ट कर सकते हैं. सो मैंने वो चीज़ स्टार्ट कर दी थी. बट अबाउट कॉन्टेंट, इफ़ यू थिंक you are better with the tech field, you are better with the gaming field, you are better with something motivational, you are better with editing or something else, so you can start with that as well. I don't have any idea about the collaborations in this field, but yeah, the collaborations are very good in this field as well, because अगर आपका एक community बन जाता है, आपका एक base बन जाता है, so that's like brand को क्या चाहिए? They need your reach, they need your followers, they need your views. So आपके पास में अगर वो चीज़ें हैं, so it will be easy for you to gain a lot of collaborations in your field, in your content as well. And then the second question, the second thing is that the focus of your work should be, see, the focus of your work should be basically on the projects, whatever you are getting. ठीक है, इनिशियली 1-2 हफ्ते जो मैंने स्टार्ट करा था, so by God's grace I got collaboration so early, at a very early stage in my career. Like I made some videos, like product videos for like 2 weeks, but after 2.5 weeks I got my first collaboration. Then after that the next day I got my second, and 2 days later I got my third collaboration. So when you start getting collaboration, you should focus on your collaboration brands, like the brands you are collaborating with. So you should basically you should postpone your own content and make them the priority in your role. If you are getting a paid collaboration, make it a first priority. If you are getting a barter collaboration, make it your second priority. And if you are getting a reimbursement collaboration, I would say you should do it. बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स बोलेंगे कि यार यू शुड नॉट डू रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन, और यू शुड नॉट गो फॉर द रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन, बहुत स्कैम होता है, बहुत फेक होता है, बहुत रिस्की होता है. आई एग्री विद दैम, ये चीज़ बहुत सही है कि बहुत ज़्यादा स्कैम और फेकनेस होती है इसमें. But if you know the brand, if you think the brand is good, or if you have seen the brand doing something in the past as well, then I think you should go with the reimbursement as well. Because कोई भी एक अच्छा ब्रांड जिसने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया है, जो एक अच्छी पोजीशन पर जा करके बैठा हुआ है, वो ब्रांड आपके साथ में स्कैम नहीं करेगा. इट्स लाइक फुल एंड फाइनल थिंग. उसके बाद में अगर आपको तब भी डाउट है, तो आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप के मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, वहाँ पर आप उस ब्रांड के बारे में पूछ सकते हो कि सी इफ़ समबडी हैज़ डन कोलैबोरेशन विद दिस ब्रांड बिफोर, तो वो लोग आपको बता देंगे कि हाँ, हमने इस ब्रांड से कोलैबोरेट करा है, और इसमें मतलब कि कोई फेकनेस नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू बी स्कैम्ड इन दिस, तो आप ये कर सकते हो. सो बेसिकली आप अपने निश के जो लोग हैं उनसे पूछ सकते हो कि सी इस ब्रांड के साथ में कोलैबोरेशन हम करें या ना करें. But initial stage of your journey, you should do the reimbursement collaboration. You should not shy away from the things like this, because these are the things which will build your portfolio, which will build your which will build your profile at least. उसके बाद में आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे. और पता है, मेरा फर्स्ट मंथ अभी कंप्लीट हो गया इस जर्नी में, एंड आई ऑलरेडी गॉट 3 कोलैब्स, और अभी मेरे 3 कोलैबोरेशंस और आने बचे ही. मतलब ये मंथ अभी स्टार्ट ही हुआ है और मेरे 3 कोलैब्स ऑलरेडी आ चुके हैं. सो मैं यही बोल रही हूँ कि जितना आप इसमें करोगे, आपको ऑटोमेटिकली ग्रोथ दिखेगी, और आपको हर महीने इसमें ग्रोथ ही दिखेगी बेसिकली. और आपका मेन तो ये है कि सी फॉर गर्ल्स आई विल से कि if you are a girl who is a teenager or who is in her 20s, want to do something side hustle or something like that, so you should go for it. You should start your YouTube channel, start your Instagram channel, start posting anything, whatever you like, whatever you want, whatever you think is good for you, just do it. Or the last question that I got is that how I got a lot of PRs at a very early stage in my career. और छोटी सी बात बताती हूँ कि मेरा YouTube पे जो बेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू Instagram. ठीक है, मैंने YouTube बहुत टाइम पहले से स्टार्ट कर दिया था, बट मैं YouTube पे अपना कंटेंट पोस्ट करती रहती थी, बट मुझे उससे कुछ नहीं मिला गाइज. मैं सच बता रही हूँ, YouTube से आपको इतना रीच नहीं मिलेगा. सो इफ़ यू आर अ यूट्यूबर, तो आप बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो और अपना इंस्टा पे अकाउंट खोल लो जितनी जल्दी हो सके. अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो उसी पे आप पोस्ट करना स्टार्ट कर दो. बिकॉज मैंने यूट्यूब पे मेरा ऑलमोस्ट मतलब 500+ सब्सक्राइबर्स जब हो गए, तब मैंने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट खोला.
उस पर जाने के बाद में मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। बेसिकली आई स्टार्टेड विद 0 फॉलोअर्स और मुझको 1 महीना लग गया और अभी मेरे कुछ 300 प्लस फॉलोअर्स ही है, ज़्यादा नहीं है। सो मुझको 1 महीना लग गया इतने फॉलोअर्स लेने में और स्टिल द सब्सक्राइबर्स आर 600 प्लस नाउ। तो मैं यही बोल रही हूँ कि यूट्यूब पे मुझको इतनी रीच नहीं मिली, मतलब यूट्यूब पे मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ, मुझे इतनी रीच नहीं मिली। और वही इंस्टाग्राम पे मैं सिर्फ 1 महीने से स्टार्ट करा है मैंने इंस्टाग्राम, और मुझको सिर्फ 1 महीने में 3 कोलैब्स ऑलरेडी मिल चुके हैं सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू, और 3 कोलैब्स मेरा अभी और आने वाले हैं, वो भी सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू ही आने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ यूट्यूबर हो, आप यूट्यूब के भरोसे सब कुछ कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम के बलबूते पे भी सब कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। आप बिकॉज मेरा जो पिलग्रिम का जो मेरा कोलैब था, पिलग्रिम का कोलैब मुझे यूट्यूब के बेसिस पर ही मिला है, बिकॉज उनको चाहिए थे सब्सक्राइबर काउंट ज़्यादा और मेरे पास सब्सक्राइबर का बेस अच्छा था और मेरा रीच और व्यूज़ अच्छे थे। सो दैट्स वाई मुझको पिलग्रिम का जो कोलैबोरेशन था वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के वजह से मिला, बिकॉज दे वांटेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन यूट्यूब ओनली। सो बेसिकली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोल करके आपका कोलैबोरेशन वाले चीज़ ले लोगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिर्फ यूट्यूब के भरोसे रह करके कोलैबोरेशन ले लोगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ब्रांड्स जो कि आपको शिपिंग चार्जेस वगैरह मांगते हैं कि वी वॉन्ट 100 रुपीज़ शिपिंग चार्ज, वी वॉन्ट 200 रुपीज़ ऑफ शिपिंग चार्ज, उन ब्रांड से आप दूर रहो। आई विल डेफिनेटली से कि वो ब्रांड्स तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, आपको बिल्कुल भी उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और ऐसे ब्रांड्स जो कि आपको बोल रहे हैं कि आप हम आपको प्रोडक्ट भेज देंगे, आप हमसे प्रोडक्ट खरीद लेना और हम आपको 2-3 महीने में या 30 डेज में रिफंड करेंगे, तो आप प्लीज़ उन ब्रांड से भी दूर ही रहो। कंपनीज़ को आपके कुछ ब्रांड्स को आपके फॉलोअर्स क्राइटेरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी सीरियसली राइट नाउ, ठीक है। Like I worked with Pilgrim while I was having only 150 followers on Instagram. और 150 फॉलोअर्स से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, बिकॉज उनके पास में ऑलरेडी फॉलोअर्स है मिलियंस में, ठीक है। पिलग्रिम इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड, दे हैव देयर फॉलोअर बेस बेटर देन मी। उनको कोई नीड नहीं थी मेरे साथ में कोलैबोरेट करने की, जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ 150 फॉलोअर्स है, या फिर जिसके पास में सिर्फ 600 और 500 सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। उनको कोई नीड नहीं थी, but the brand wanted their content to be posted on each and every platform. That's why they chose me. कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट शी इज़ नॉट हैविंग अ गुड बेस ऑन इंस्टाग्राम, बट एटलीस्ट शी इज़ हैविंग अ बेटर बेस ऑन यूट्यूब। सो उन्होंने मुझको यूट्यूब के लिए अप्रोच करा। और अगर कोई ब्रांड आपको आकर बोल रहा है कि आपकी प्रोफाइल इतनी एस्थेटिक नहीं है, यू डोंट हैव अ काइंड ऑफ फॉलोअर्स, यू डोंट हैव अ रीच, योर प्रोफाइल डज नॉट मैच आर प्रोडक्ट, सो आप उनको डायरेक्टली बोलो कि थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, but I don't want to work with a brand which demotivates a budding influencer or a budding creator like this. और आप उनको प्रॉपरली लाइक ऑन अ वेरी गुड नोट आप उनको ऑल द बेस्ट बोल करके उनके डीएम से हट जाओ, ठीक है। और यही वो ब्रांड्स है जो आपको आगे इन फ्यूचर आकर के डेफिनेटली पिच करेंगे ही हाउ टू क्रिएट अ वीडियो। सो मैं मेरा जो पिलग्रिम का कोलैब वीडियो था वो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ब्रांड के जो भी आपको बॉक्स आता है, आप उसके 2-3 तरीके से वीडियोस बना सकते हो। पहला आप बना दो अनबॉक्सिंग का वीडियो, आपको कोई भी ब्रांड से कोलैब आया, सो पुट अ स्टोरी, आप उस डब्बे के साथ में स्टोरी डाल दो कि सी वॉट आई गॉट दिस मॉर्निंग, अनादर कोलैब, अनादर डे, अनादर कोलैब करके कोई भी एक स्टोरी डाल दो उसकी पहले। तो उसके बाद में उस बॉक्स को खोलते हो, उसका एक अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाओ। सो उस अनबॉक्सिंग का एक रील बनेगा आपका। उसके बाद में जो वो प्रोडक्ट आया है, अगर आप फेस शोइंग क्रिएटर हो तो आप उसको यूज़ करके बताओ अपने फेस पर। अगर आप फेसलेस क्रिएटर हो तो आप उस प्रोडक्ट को ही अच्छे से, मतलब उसके अच्छे शॉट्स लो, हर एंगल से उसका शॉट लो, उसको एडिट करो, उसको उसको मतलब कि बनाओ, कुछ अच्छा लगेगा, एस्थेटिक बनाओ उस चीज़ को। उनका आपके 3 वीडियोस तो यही तैयार होकर के रह गए, मतलब आपने 2-3 वीडियोस तो यही बना लिए। उसके बाद में आपको अगर ऐसा लग रहा है क्यों ना आपने अगर आपने उस ब्रांड को यूज़ करा, समझो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, कुछ भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस ब्रांड से आपको और आगे कोलैब्स नहीं आ रहे, सो आप उस ब्रांड का वही वाले प्रोडक्ट के साथ में एक रील और बना दो कि सी आई यूज्ड इट फॉर लाइक 2 months एंड दिस वॉज माई स्किन 2 months बिफोर एंड दिस इज माई स्किन नाउ। आपके पास में 2 महीने पहले के पिक्चर्स तो होते ही है सबके पास में अपने,
तो 2 महीने पहले की जो भी सेल्फी है वो लगा दो, फिर 2 महीने बाद की जो सेल्फी है वो लगा दो. सो बेसिकली मेक अ डिफरेंस. ब्रांड को बताओ कि हाँ, हम आपके लिए वर्क करना चाह रहे हैं, सो प्लान योर डे, प्लान योर कंटेंट. बेसिकली अपनी चीज़ों को प्लान करके चलो. और जो भी आपका प्लानिंग आपने डाल के रखा है कि लाइक मुझे इस दिन ये रील पोस्ट करना है, मुझको इस दिन ये पोस्ट करना है, मुझको इस दिन वो पोस्ट करना है, डू इट. डेली 1 या 2 रील पोस्ट करो ही करो. आपको अगर ऐसा लग रहा है आप इनिशियल स्टेज पर हो तो 1-2 रील पोस्ट करो, 5-6 स्टोरीज पोस्ट करो. सो कि आपको जितना भी इंफॉर्मेशन है वो इस वीडियो से मिल चुका होगा. सो फॉर टुडे वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर. And I am gonna definitely come up with a next Q&A on the collaboration, or how to start YouTube, how to get collaborations again in the near future. So until then, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye. Love you.